आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों, आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं और नए पाठ का नाम है छोटा जादूगर, लिटिल मैजिशियन। लिटिल मैजिशियन, छोटा जादूगर। तो छोटा जादूगर ये दूसरा पाठ है आपका, दूसरा पाठ है छोटा जादूगर। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद हमें क्या समझाना चाहते हैं, तो उस पर हम विचार करेंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कथा छोटा जादूगर। तो जयशंकर प्रसाद हमें क्या सीख देने जा रहे हैं, सुनो। तो यहां पर जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं, मैं आपको सबसे पहले इस पाठ का अर्थ कन्नड़ में बताऊंगा, बाद में इसे हिंदी में हम एक्सप्लेन करेंगे। छोटा जादूगर अंदरे ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡವ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ. ಈಗ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾದೂ ಮಾಡವ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಯಿತು? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದುಡಿದರೆ ರೊಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದುಡಿದರೆ ಮನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯವರು ಅವರ ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿನೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಪಾಪ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಸುಖ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಿಂದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಜಾದೂ ಆಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ನಗಿಸುವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ನಡಿಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಓಡಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಪಾಪು ಛೋಟಾ ಜಾದೂಗರ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ನಗಿಸುವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಈ ಮಗು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಮಗು ಛೋಟಾ ಜಾದೂಗರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಛೋಟಾ ಜಾದೂಗರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ, ಸುರೇಶ್, ರಮೇಶ್, ಯಮನಪ್ಪ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಥರ ಹೆಸರು ಇರ್ತಾವೆ. ಆದರೂ ಈ ಮಗು ತಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಹೆಸರೇನೆಂದರೆ ಛೋಟಾ ಜಾದೂಗರ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಲಿಟಿಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜಾದೂ ತೋರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ದುಃಖಭರಿತ ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಗು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ,
ಅಳುವುದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರೀತಿಯಿಂದ ಜಯಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಹಳ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ದೇವರು ಕೆಲವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಈ ಪಾಪ ಸಣ್ಣ ಮಗು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ದುಃಖ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಸಜೀವ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಓದಿ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಛೋಟಾ ಜಾದೂಗರ್. ಈ ಛೋಟಾ ಜಾದೂಗರ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. छोटा जादूगर, मैदान में बिजली जगमगा रही थी. फुवारे के पास एक लड़का शरबत पीने वालों को देख रहा था. उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी और जेब में कुछ ताश के पत्ते पड़े थे. मैं न जाने क्यों, मैं का मतलब है ಜಯಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಮೈ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಯಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. तो यहाँ पर हुआ क्या? तो यहाँ पर मैं न जाने क्यों उसकी ओर आकर्षित हुआ. मैंने उससे पूछा, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है. यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं. मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ. उसे उस जादूगर से अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने जोश से कहा. देखो, जयशंकर प्रसाद की मुलाकात इस छोटे से जादूगर से हुई. छोटे जादूगर से मुलाकात हुई तो छोटे जादूगर ने क्या कहा? ये सिचुएशन देखिए कैसा है. ಮೈದಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಟದ ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೈಟ್ಗಳು ಇದ್ದು ಅದರ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಶರ್ಬತ್ ಮಾರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಾರೆ. तो यहाँ पर भी हुआ क्या कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी चीजें बेच रहे थे. फुवारे के पास एक लड़का शरबत पीने वालों को देख रहा था. फुवारे का मतलब है कारंजी. कारंजी यानी पानी के ऐसे फवारे जो आसमान में उड़ते हैं. तो उन्हें वहां क्या दिखाई दिया? तो शरबत पीने वालों को देख रहा था. उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी और जेब में कुछ ताश के पत्ते पड़े हुए थे. न जाने क्यों उसकी ओर आकर्षित हुआ. मैंने उससे पूछा, तुमने इसमें क्या देखा? अब वो बेचारा लड़का उधर साइड में खड़ा है, उसे ये तक पता नहीं है कि यहां इस मैदान में क्या क्या खेल होता है. जब उसने वहां एक जादूगर को देखा, उसके खेल को देखा, ताश के पत्ते यानी प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसको ताश के पत्ते कहते हैं. 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें. तो वो देखा तो वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं भी क्यों ना छोटा मोटा जादूगर बनकर यहाँ अपनी करतब दिखा सकता हूँ. वो मन ही मन सोच ही रहा था कि उसी समय लेखक ने आकर उसे टोका. मैंने सब देखा. तब वो लेखक को क्या बताने जा रहा है सुनिए.
खिलौने पर निशाने लगाना, मुझे तो खिलौने पर निशाने लगाना अच्छा मालूम हुआ, उस जादूगर से अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ जो इस कार्निवल में, इस जत्रा में जो व्यक्ति खेल दिखा रहा है जादू का, उससे बढ़िया तो मैं दिखा सकता हूँ, मुझे भी आता है जादू करना, ऐसा वो जयशंकर प्रसाद से कहने लगा। तो देखिए यहां पर उस जादूगर से अच्छा तो खेल तो मैं दिखा सकता हूं, उसने जोश से कहा। मैंने पूछा और उस पर्दे में क्या है, वहां तुम गए थे? वह बोला नहीं, वहां मैं नहीं जा सका क्योंकि वहां पर टिकट लगता है। मैंने कहा तो चलो मैं तुमको ले चलूं। उसने कहा वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले गए। मैंने पूछा तुम्हारे घर में और कौन है? वह बोला माँ और बाबूजी है। मैंने पूछा उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? वह बोला बाबूजी जेल में है। और मैंने फिर पूछा क्यों, देश के लिए? वह गर्व से बोला। मैंने पूछा और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। वह बोला मैंने कहा और तुम तमाशा देख रहे हो? तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। जरा ये लाइन को ध्यान से सुनो। ये छोटा बालक बोल रहा है कि मैं इस जत्रा में तमाशा देखने के लिए नहीं आया हूं, मैं दिखाने के लिए आया हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ का पथ्य दूंगा, यानी माँ की दवाई के लिए इलाज करवाऊंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो अधिक प्रसन्नता होती। देखो बच्चों, कितनी दुख भरी कथा है। जयशंकर प्रसाद ने छोटा बालक समझकर उसे शरबत पिलाया। वहां पास ही में जत्रा में, कार्निवल में, वहां खेल चल रहा था। पर्दे के पीछे जादू का खेल चल रहा था, लेकिन वहां टिकट था, वो खेल नहीं देख सकता था। बातों बातों में जयशंकर प्रसाद ने उससे पूछा, ಮಾತು ಮಾತು ಒಳಗೆ ಜಯಶಂಕರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಮಗುಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? उसने बड़े गर्व से कहा मेरे पिताजी जेल गए हैं और वो भी देश की आजादी के लिए जेल गए हैं। ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಜೈಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎದರ ಸಲುವಾಗಿ? ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಲುವಾಗಿ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ತರ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಅವಾಗ ಜಯಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ನೀ ಇಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ನೋಡ್ಲಾಕ್ ಬಂದಿಯೇನ? ಅವಾಗ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತಮಾಷೆ ನೋಡ್ಲಾಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ತಮಾಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಕ್ ಬಂದೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಾದುವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಾಕ್ ಬಂದೀನಿ। ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ರೊಕ್ಕದಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಔಷಧವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬಹುದು। ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಜಯಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ। जयशंकर प्रसाद को ये बातें सुनकर बहुत दुख होता है कि एक बालक जिसकी हंसने और खेलने की उम्र है और वो बेचारा बच्चा यहाँ पर तमाशा दिखा रहा है। और वो बालक भी उनसे कहता है कि आप मुझे शरबत पिलाने के बदले मेरा तमाशा देखकर मुझे पैसे देते तो मुझे बहुत खुशी होती। तो सोचो बच्चों, आजादी से पहले लोगों में कैसी गरीबी थी, लोग कितने मुश्किल से अपना जीवन बिता रहे थे। आज ऐसी स्थिति इस पाठ में निर्माण हुई है। छोटा जादूगर, ये बेचारा बच्चा अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा है।
तो इसके संघर्ष की कहानी को आगे सुनो। उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के बालक को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसीलिए मैं नहीं गया। वह बोला। मैंने पूछा, कहाँ गए हो? कहाँ? जेल में। जब लोग तमाशा देखते ही है तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। वह बोला। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने बाहर टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। मैं तो चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई। देखो बच्चों, यहाँ पर एक और गेम हो रहा था और वो एक खेल और चल रहा था। वो था गेंद फेंकने का। तो गेंद निशाने पर लगाना है और आप जितने गेंद निशाने पर लगाएंगे, ಎಷ್ಟು ಚೆಂಡನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಗಿತೀರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, एक इनाम आपको मिलेगा। तो यहाँ पर उसने सारे निशाने सही लगाए और उसे बहुत सारे इनाम मिले और वो सारे इनाम लेकर वो वहाँ से चला गया। लेखक सोचने लगे कि मैंने इसकी मदद की और ये बेचारा यहाँ से निकल गया, क्या बात है। तो देखो क्या हुआ। मैं घूमकर झूले के पास लोगों को ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर से हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन है? मैं हूँ छोटा जादूगर, कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, तुमको क्रोध से मैं नहीं जी, तुमको क्रोध से मैं कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उसके सब खिलौने खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़ियों का ब्याह हुआ। तो यहाँ पर ये छोटा जादूगर जो अभी अभी उसने वो खिलौने खेल में जीते हैं, उन्हीं खिलौने से ये अपना तमाशा दिखा रहा है और अपना तमाशा ऐसे दिखा रहा है कि उस तमाशे में सभी खिलौनों को वो सजीव रूप में दिखा रहा है, प्रत्यक्ष रूपದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। और इसमें क्या हुआ कि भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, बंदर भी है, भालू भी है, ये सारे यहाँ पर जानवर मौजूद है। जयशंकर प्रसाद की पत्नी श्रीमती जी वो ये खेल देखना चाहती थी बच्चे का। वो ये देखना चाहती थी कि बच्चा किस प्रकार से अपना खेल दिखाता है। तो बच्चे का खेल देखकर उसे बहुत खुशी हुई। छोटा जादूगर का खेल उसे बड़ा मजेदार लगा। अब हुआ क्या, आगे देखिए, जरा ध्यान से कथा को सुनिए, क्योंकि आगे का अब भाग बहुत ही दुख भरा भाग कहलाएगा। तो अब होता क्या है, तो देखिए इधर आगे इस कैसी परिस्थिति निर्माण होती है। तो अब परिस्थिति बड़ी गंभीर है, तो सुनिए क्या होता है।
अब यहाँ उसका जादू का खेल अभी चल रहा है। सुनिए। गुड्डा वर काना निकला, काना यानी जिसे सुनाई नहीं देता। लड़के की वाचालता से भी अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। यहाँ पर छोटा जादूगर का खेल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वो खेल पर खेल दिखा रहा है, लेकिन समय की भी पाबंदी है। लेकिन समय में ये खेल समाप्त होना चाहिए, लेकिन वो भीड़ को बढ़ाने के लिए खेल दिखाता जा रहा है, दिखाता जा रहा है। जितनी भीड़ ज्यादा होगी, जितने ज्यादा लोग आएंगे देखने के लिए, उतना क्या होगा, खेल का मजा बढ़ेगा। तो यहाँ पर श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। देखो, उस समय 1 रुपये की कीमत बहुत ज्यादा थी, तो 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए। मैंने, जयशंकर प्रसाद ने उसे लड़के कहा, उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मुझे लड़का मत कहिए, मुझे क्या कहिए, मुझे छोटा जादूगर कहिए। उसे 1 रुपया दिया। वो बहुत खुश हुआ। अब क्या हुआ देखिए आगे। रह रह कर छोटे जादूगर का स्मरण हो आता था। तभी देखा वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? देखो, अब यहाँ पर घटना बदल जाती है। तो घटना बदलने से पहले मैं आपको पिछली बातें याद दिलाऊंगा। क्या हुआ? श्रीमती जी ने धीरे से उसको 1 रुपया दिया। वह उछल उठा, खुशी हुई उसे। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए। जब श्रीमती जी ने उसको लड़के कहा, उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मुझे छोटा जादूगर नाम से पुकारो। यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है, यानी इसी से मेरा पेट पलता है और यही मेरा नाम है। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। लता कुंज यानी एक गार्डन देखने के लिए चले गए, हाँ, जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स थे। वो गार्डन देखने के लिए चले गए। इधर उन्हें छोटे जादूगर की याद बार बार आ रही थी। जब देखा कि छोटा जादूगर एक कोने में कंबल ओढ़े झोपड़ी में खड़ा है, तो अचानक उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। वो उसके पास पहुंचे, लेखक उसके पास पहुंचे। आखिर यहाँ इतना परेशानी में क्यों खड़ा है ये छोटा जादूगर? आखिर इसे क्या हो गया है? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। देखो, बेचारी, उसकी माँ अस्पताल में थी, लेकिन अस्पताल का फीस अगर आप नहीं दोगे, फीस कटले लग रहे होगा, हॉस्पिटल तो वो भाग बढ़ता है। ऐसा ही हुआ इसके साथ। इसकी माँ को निकाल दिया गया अस्पताल से। अब वो अपनी झोपड़ी में रह रही है। छोटा जादूगर बड़ा परेशान है। ऐसी स्थिति में जयशंकर प्रसाद उसके घर पहुंच गए हैं। तो अब घटना कैसे आगे बढ़ी, सुनो। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से लिपटे हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। जयशंकर प्रसाद ने यह दृश्य देखा कि एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक स्त्री सोई हुई है और वो सोती हुए कांप रही है, कांप रही है। अब उसकी मौत बहुत नजदीक पहुंच गई है, मौत के बहुत करीब आ गई है वो। तो ऐसी स्थिति में बेटा अपनी मां से लिपट कर कहता है, मां मां मां, जागो ना, जागो ना, उठो ना, बातें करो ना।
तो हुआ क्या देखो, तो यहां पर छुट्टी बीत चली थी, ऑफिस के समय से पहुंचना था, ऑफिस में समय से पहुंचना था, कलकत्ते में मन ऊब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई, साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा होता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। बच्चों, यहाँ घटना बार बार बदल रही है। यहाँ पहले दृश्य में वो मैदान में जादू का खेल दिखाता है, दूसरे दृश्य में वो झोपड़ी के पास खड़ा है उदास, तीसरे दृश्य में और कई दिनों बाद में जयशंकर प्रसाद और जादूगर की मुलाकात होती है। तो ऐसे दृश्य अलग अलग है, इसको काट काट कर दिखाया गया है, इस पाठ में काट काट कर बताया गया है। तो हमें वैसा ही समझना है कि बीच में 10-12 दिन का गैप है, हर एक घटना के बीच में 10-12 दिन का गैप देकर रखा है उन्होंने। तो हुआ क्या देखो, छुट्टी बीत चली थी, हाँ, तो अब वो सोचने लगे कि आज अगर छोटा जादूगर मैदान में दिखा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत दिनों से उसके साथ मुलाकात नहीं हुई। 10 बज चुके थे। मैंने देखा उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक पेड़ पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। मैदान में आज भी जादूगर खेल बता रहा है, लेकिन वो हंस नहीं रहा है, उछल नहीं रहा है, कूद नहीं रहा है, केवल खेल बता रहा है, और वो भी पैसे के लिए खेल बता रहा है। तो देखो, जब वह औरों को हंसने की चेष्टा कर रहा था, जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तो क्या हुआ, तब जैसे स्वयं कांप जाता था। हंसाने का मूड बना रहा था वो लोगों को, हाँ मैं आपको हंसाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन ओठ कुछ और ही कह रहे थे, आंख कुछ और ही कह रहे थे, दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। तो ऐसी परिस्थिति उसकी निर्माण हो गई थी। तो देखिए क्या हुआ, खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, प्रसन्न हो गया कि आज मुझे लेखक दिखाई दिए। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप आ गई है। अविचल भाव से उसने कहा। देखो, आज वो खेल उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं दिखा रहा था। जब लेखक जयशंकर प्रसाद ने पूछा कि आज तुमने खेल इतना अच्छा नहीं दिखाया, क्यों? तो उसने कहा, मेरी माँ ने आज खेल दिखाने से पहले मुझे जाते वक्त कहा था, बेटा तुम शाम को जल्दी आ जाना, क्योंकि मेरा समय निकट आ गया है, यानी अब मैं मरने वाली हूँ, मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है, मेरी मौत नजदीक आ गई है, तुम जल्दी आओ। अब ये सुनते ही क्या हुआ देखिए, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने क्रुद्ध होकर उससे कहा। उसने कहा, क्यों ना आता? कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो, जल्दी चलो। पहले लेखक को गुस्सा आया उस पर कि तुम आज खेल दिखाने क्यों आए? हाँ, तुम्हें खेल नहीं दिखाना चाहिए था, तुम्हारी माँ बीमार है। लेकिन बाद में पता चला कि अरे ये खेल नहीं दिखाएगा तो माँ के लिए दवाई कहाँ से लाएगा, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारता हुआ घुसा। मैं भी पीछे पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बेटा
ये शब्द भी नहीं निकल पाया, केवल स्त्री ने कहा बे, और वो मर गई। देखो, मुंह से सिर्फ बे निकल कर रह गया, उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। देखो बच्चों, इसे कहते हैं गरीबी, इसे कहते हैं दुख, इसे कहते हैं पीड़ा। बेचारा अपनी मां के दवाई के लिए उस दिन भी खेल बता रहा था, जिस दिन उसके मां का समय बहुत करीब आ गया था, मौत का समय। मां ने केवल अपने बेटे को देखा, बेटा कहने की शक्ति भी उसमें नहीं बची, और वो बे कहकर अपने प्राणों को त्याग देती है, और बेटा मां से लिपट कर रो रहा है। कष्ट कितना है उसे, ये यहां स्पष्ट हो रहा है। बच्चों, ऐसी मार्मिक कथा से हमें सिर्फ एक ही शिक्षा मिलती है कि हम केवल अपने परिवार के विषय में ना सोचें, हम उन गरीब लोगों के विषय में सोचें जो बेचारे सुबह कमाते हैं, शाम को अपना पेट भरते हैं। अगर हमारे पॉकेट में से 1 रुपया भी हम उनके मदद के लिए आगे बढ़ाएंगे तो उनकी मदद होगी, उनकी भी गरीबी दूर होगी। तो हमें सबके विषय में सोचना है बच्चों। धन्यवाद।